actually regular expression regex. Okay, and for that Python having a module that is actually RE. Python having a module and the name of the module is RE. This topic is regular expression. So first question is, what is regular expression, why it is used, or what's the application of the regular expression? So guys, the simple answer is, if you have a like group of characters or group of strings, or you can say that, let I say I have a paragraph. Okay, मेरे पास एक paragraph है, and someone say in this paragraph I have a PNR numbers or some students name and age are there, और let I say कि मुझे एक बड़ा सा paragraph दिया हुआ है, and from this paragraph मुझे किसी का ticket find out करना है, मुझे किसी का टिकट फाइंड आउट करना है, एंड टिकट में उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, टिकट एक्चुअली स्टार्ट्स विद पीएनआर, टिकट एक्चुअली स्टार्ट्स विद द पीएनआर, मुझे पीएनआर नंबर स्टार्ट करना है, सॉरी मुझे पीएनआर नंबर सर्च करने ग्रुप ऑफ पैराग्राफ में से, अदरवाइज ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग से. सो मेरे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ था, लेट अस से 100 लाइंस आर देयर, मुझे इसमें से पीएनआर नंबर, जिनके पीएनआर नंबर्स अवेलेबल, आई वांट टू जस्ट फाइंड आउट. Then guys, for that searching operation, actually RE is used, regular expressions. Manually also we can just write the script to find out that PNR from the given paragraph. But the thing is, अगर हम RE use करते हैं, then it's an optimized way to search that thing. Okay, so what is RE? RE means it's a regular expression. So what is regular expression? It's a special sequence of characters. Okay, it's a special sequence of characters that helps to find out or match a string or a set of strings from a given set of strings. Okay, so that's the RE. And in Python, we have a RE module. We have a module, and the name of the module is RE. Here it is. So like the module name is RE. So let me just open the help of this RE module. So let me just write down what I did. I just import the RE and just fire a command help in the bracket RE. So what is RE? So like just as we discussed, actually it is just used to find out the string or set of string from a given set of string or given set of characters. Actually that's that. Okay, now these are some examples. Okay, यहाँ पे कुछ तो उन्होंने examples दिए हुए. We will just discuss almost the things from here. Okay, काफी सारी चीजें हम यहाँ से discuss करेंगे. And these are the functions which are most useful. The first one is match, search, sub, split, and find all. These are the most useful functions. Okay, otherwise generally used functions. Like frequently आप कहीं पे भी RE की बात करो तो आपको इनमें से कोई एक function use करना है. So let me start with that. So yeah, fine here. So the first function is nothing but an actually match function. The first function is a match function. So now guys, before that, before starting the match function or some functions of the RE, मैं राइट नाउ आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि अभी जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हाउ टू एक्चुअली लाइक राइट डाउन द रेगुलर एक्सप्रेशन, बट राइट नाउ जस्ट एक्सेप्ट दैट. ओके, अभी सिर्फ उसको एक्सेप्ट करके चलिए, हाँ ये ऐसे काम कर रहा है. ओके, बाद में हम सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्मुलेट दैट, उसको कैसे एक्चुअली डेवलप किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज मैच फंक्शन. First one is match function. What is the use of the match function? This function attempts to match an RE pattern. RE pattern मतलब जो हमने एक sequence लिखा हुआ है, string लिखा हुआ है, group of characters लिखा हुआ है. It is just try to match that thing in a given string. मान लो एक पैराग्राफ है, मुझे उस पैराग्राफ में से PNR और उसके पीछे कितने डिजिट्स है. So PNR are not the number of digits, but PNR और उसके पीछे अगर continuously digits आ रहे हैं, I want to just find out that. ओके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसमें से मुझे पीएनआर टिकट्स या पीएनआर नंबर सबके फाइंड आउट करने हैं. तो लाइक द रूल इज, अदरवाइज द पैटर्न इज, हर एक नंबर के आगे पीएनआर लिखा हुआ है. सो आई वांट टू फाइंड आउट दैट. ओके, सो मैच फंक्शन विल डू दिस. हम लोग जो भी आरई लिखेंगे, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्मुलेट करेंगे, वो रेगुलर एक्सप्रेशन को गिवन स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट करके देगा. सो दिस इज द सिंटैक्स. ओके, द फर्स्ट थिंग इज योर पैटर्न, इन शॉर्ट आरई. सेकंड वन स्ट्रिंग, कहां पे सर्च करना है, कौन सी स्ट्रिंग में सर्च करना है. लास्ट वन इज फ्लैग. व्हाट इज फ्लैग वी विल डिस्कस लेटर. Okay, what is flag, that we will discuss later. Right now pattern and string. String matlab given set of strings, otherwise you can say that paragraph. Pattern matlab what you want to search. Okay, what you want to search. So now like here I have an example. Just a moment. Yeah, fine. Here I have an example. So now here like let me just firstly import our RE, and this is my string जिसमें मुझे कुछ search करना था. Cats are smarter than the dogs. This is my given string जिसमें मुझे कुछ search करना था.
what you want to search, sir? This I want to search, this I want to search. Now what is that R? Can you please tell me what is that R? R का मतलब हम डिस्कस कर चुके पहले भी. R means what? It's a raw data. Means अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेशल चीज यूज कर रहे हो, लेट आई जस्ट टेल यू, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा था स्लैश, तो स्लैश का मतलब एक्चुअली एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश आर, स्लैश ए, स्लैश बी. सो इट इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एस्केप सीक्वेंस. ओके, वो एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है. सो आई डोंट वांट टू एक्चुअली कंसीडर दैट यहाँ पे अगर मैं स्लैश एन लिखूं तो उसका मतलब न्यू लाइन है. मुझे इसको बोलना था दिस इज नॉट ए न्यू लाइन, दिस इज माय एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ माय रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, सो दैट आगे मैंने क्या लिख दिया था, आर. आर मींस जो भी चीज अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हमने यूज किए, देन उसका कोई स्पेशल मीनिंग मत लो, एज इट इज उसको यूज करो, दैट्स इट. एज इट इज उसको यूज करो, दैट्स इट. सो नाउ दिस इज माय रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन. आई होप ये आर का मीनिंग आपको क्लियरली पता चला. आर मींस just want to inform my Python that please consider the whole string as a given. Okay, इसको as it is consider करिए, कोई स्पेशल मीनिंग मत लीजिए. यस, आरई का स्पेशल मीनिंग जरूर लीजिए. इसमें जो जो कैरेक्टर्स आरई मतलब जो आरई मॉड्यूल को पता है वो आप ले सकते हो. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डॉट स्टार? डॉट स्टार मतलब लाइक n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. डॉट स्टार मतलब n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. स्टार मतलब एनीथिंग, स्टार मतलब एनीथिंग, डॉट मतलब n. ओके, सॉरी, डॉट मतलब एनीथिंग, स्टार मतलब n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. डॉट मतलब एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन जस्ट कंसीडर. स्टार मतलब व्हाट? स्टार मतलब व्हाट? n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, n लाइक 5, 10, 15 कैरेक्टर्स कितने भी. ओके, तो मुझे देखो यहाँ मैंने यहाँ लाइन लिखा था, लाइन इन द सेंस एज पर द सिंटैक्स. दिस इज द स्ट्रिंग जिसमें मुझे कुछ डेटा सर्च करना है. दिस इज द स्ट्रिंग जिसमें मुझे कुछ डेटा सर्च करना है. क्या पैटर्न से सर्च करना है? दिस पैटर्न यू हैव टू फॉलो. ये पैटर्न आपको सर्च करना है. सो यहाँ मैंने क्या लिखा है? डॉट स्टार, दैट मीन्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो r से पहले है. तो ये वाला स्ट्रिंग देखिए, ये वाला स्ट्रिंग देखिए, उसमें r से पहले क्या है? कैट्स. तो ये भाई साहब कैट्स को मैच करेंगे. अभी अगर नहीं समझ में आ रहा देन जस्ट इग्नोर दैट. राइट नाउ सिर्फ इतना समझ लिए कि r से पहले कुछ भी चलेगा, r से पहले कुछ भी चलेगा. सो दिस राउंड ब्रैकेट विद डॉट स्टार एक्चुअली मैच द कैट्स. उसके बाद भी हमने डॉट स्टार लिखा है, मतलब n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन मैच. डॉट स्टार मतलब कुछ भी बट n नंबर ऑफ. ओके, बट व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन मार्क? सर अगर स्पेस आ गया मतलब पहला ग्रुप, यू हैव टू जस्ट कंसीडर ओनली फर्स्ट ग्रुप. तो आर के बाद एक ही चीज कंसीडर, स्मार्ट ऑफ. अगेन पीछे वंस अगेन डॉट स्टार का मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स, n नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, बट दैट्स फाइन. ये चीज अभी इग्नोर कर रहे हैं. re.m, re.i. okay, re in the sense that's my module. What is m and what is I? Just ignore that. Okay, right now just ignore that. But now the question is what it returns. Match object, match function क्या return करेगा? So guys, match function will return a match object. Match function will return a match object. So let me just once again read all this documentation. So re.match function return a match object on success and none on failure. अगर उसको successfully कुछ नहीं मिला, it returns none. Okay, now we have a group function. We can use a group function or groups function. We can use group or group function to fetch the data that we will discuss. Okay, but we have two functions actually, group and groups. Actually जो अपने match के अंदर है, that is available in match. Why I'm discussing the match? Because अगर मैं match function use करूं, अगर मैं match function use करूं तो मुझे वो match का object देगा. ओके, एंड मैच के ऑब्जेक्ट के अंदर, मैच का ऑब्जेक्ट मतलब एक क्लास है, मैच नाम का एक क्लास है. ओके, उसका मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसके अंदर कुछ फंक्शंस अवेलेबल है. सो इट इज नथिंग बट ए ग्रुप, ग्रुप्स एक्चुअली स्पैन. सो दिस आर द फंक्शंस. ओके, दिस आर द फंक्शंस जो उसके अंदर अवेलेबल है. सो नाउ लेट मी डिस्कस. एक एग्जांपल लेते हैं. सो नाउ हियर आई हैव one minute. Fine. Okay, so this is the line, cats are smarter than dogs, and this is the match. Okay, so right now let I just print print match object and let me comment this. Okay, तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ कि आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे. So re1.py.
Fine, what it returns? It returns a match object. It returns a match object and just say, oh, span equals to 0 to 26, match, this is the match value. Okay, this is the match value. So if you want to get the value of span, otherwise if you want to get the value of match, then we can just use this match object. Match object मतलब उसका return tag. Okay, उसका return tag हम चेक कर सकते हैं कि अगर match के object की value none नहीं है, as we discuss, अगर मुझे यहाँ से successfully return मिला तो क्या मिलेगा? अगर मेरा search successfully perform हुआ तो मुझे return क्या मिलेगा? It returns a match object. And अगर failure हुआ तो then it returns none. Then at that time it returns none. So अगर मुझे none नहीं मिल रहा, if match object मतलब if it is not none. Okay, if it is not none, then just do this. Otherwise, just write down no match found. Okay, no match found. That's that. जैसे कि मान लो मेरा string पहले से empty था, then like पहले से मेरा string empty था, then what's the problem? Then it just say, oh, no match found. Okay, no match found. And मान लो अपने पास string के अंदर कुछ available है, then अपने पास string के अंदर कुछ available है, then जैसे मेरे पास यहाँ पे available है cats are smarter than dogs, then ये match कैसे करेगा? पहले तो r के पहले कुछ भी, r से पहले कुछ भी, r के बाद भी कुछ भी, but question mark मतलब only single, only one time. Okay, एक single existence I required. And what about this dot star? It is a greedy approach. मतलब ये dot star का मतलब यहाँ पे dot star ही. But what about this round brackets? तो round brackets 2 मिनट पे डिस्कस करते हैं. Okay, so like it returns a match object on success. तो यहाँ पे इसका मतलब होता है like a match object is not equals to null. Match object is not equals to null. Now what it returns? This group actually returns the whole string जो उसको match मिली है. Okay, this group will returns the whole string जो match में मिला हुआ है. Okay, so let me just print. So it returns the whole thing, like cats are smarter than dogs. It returns the whole thing, जो match हुआ है, जो successfully match हुआ है. Okay, and what about this match group of one? What about this one? One मतलब जो पहले round bracket में match हुआ है, जो पहले round bracket में. अगर हम लोगों ने match object में round brackets किए हुए, match objects में round bracket किए हुए, मतलब अपने जो RE के अंदर round brackets किए हुए, so it just return a group. This is my first group, this is my second group, and onwards. Then how many round brackets are there? How many round brackets are there? We have 2 round brackets. So match object जो उसका return type था, dot group of one will return the first round bracket data. So ये R से पहले क्या match हुआ है guys? R से पहले कौन सी string match हुई है? That's a cat. What about like R के बाद क्या match हुआ है? So R के बाद मेरे पास बहुत सारी चीज थी, smarter than dogs. तो ये क्या match करेगा? क्या match करेगा guys? Yes anyone? ये क्या match करेगा? Anything it can match. Sorry. Space. Sorry. Yes, can you repeat? तो smarter वाले string आएगी ना? It returns actually smarter than. Because यहाँ remaining इसके लिए कुछ रखना है, because देखो यहाँ पे dot star का मतलब it can match anything. Okay, n number of characters it can match, but anything it can match. मतलब space, question mark कुछ भी match कर लेगा. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स मैच कर लेगा, बट लास्ट में उनको बोला है वो भाई एक चीज मेरे लिए रखना. ओके, तो लास्ट में एक कैरेक्टर मुझे रखना है, सर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मुझे रखना है इस भाई के लिए. सो जस्ट चेक. ओके, नाउ इट जस्ट मैच. ओके, दिस इज द कैट्स एंड दिस इज स्मार्टर. ओके, स्पेस से टर्मिनेट हुआ है. ओह यस, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस दिया हुआ है, सो स्पेस से टर्मिनेट हुआ. एंड वन मोर थिंग, 1 मिनट गाइस, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स प्रिंट करूं तो, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि मुझे थर्ड थिंग चाहिए तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 लिखा तो व्हाट इट रिटर्न्स? थर्ड ग्रुप है हमारे पास, तीसरा राउंड ब्रैकेट है नहीं, देन इट रिटर्न्स अ नल. देन इट रिटर्न्स नन कि सर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं, मींस इट जनरेट्स एन एरर कि ऐसा कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं है. दैट इज एन इंडेक्स एरर. ओके, सो राउंड ब्रैकेट में जो चीजें लिखी है वो मैच हो गई. And what about this dot and like star? That means it is a greedy approach. It can read anything. जैसे यहाँ भी वही लिखा था हमने, बट राउंड ब्रैकेट मतलब कि इसका आंसर मुझे स्टोर करना है ग्रुप ऑब्जेक्ट में. अगर मैं यहाँ से राउंड ब्रैकेट रिमूव कर दूं, तो मैच तो वही होगा, बट दिस विल बी स्टोर्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू 0. मतलब ये फर्स्ट राउंड ब्रैकेट कंसिडर होगा. मतलब यहाँ पे आंसर मिलेगा इन दिस मैच ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप ऑफ
2 यहाँ पे हम लोग को बग जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ मुझे स्मार्टर मिला फर्स्ट राउंड ब्रैकेट में, सेकंड में मुझे एक्चुअली बग जनरेट करके दिया। So that means round bracket is not mandatory, but round bracket generally कब यूज करते हैं कि अगर आपको जो मैच हुआ है वो ग्रुप को आपको इंडिविजुअली स्टोर करना है, जो मैच किया उसने वो ग्रुप को आप इंडिविजुअली स्टोर करना चाहते हो, देन यू हैव टू जस्ट गो विथ राउंड ब्रैकेट्स। ओके, स्टिल जस्ट इग्नोर दिस, इसको टेम्पररी भूल जाइए अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो, बट आई होप दिस इज क्लियर कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बट अभी मैच फंक्शन आई होप दैट इज क्लियर। सो मैच फंक्शन विल रिटर्न ए मैच ऑब्जेक्ट, और मैच ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग डेटा ले सकते हैं बाय जस्ट कॉलिंग अ ग्रुप। जो ग्रुप मुझे टोटल चीज दे देगा जो मैच हुआ है। ग्रुप ऑफ 1 मतलब पहला राउंड ब्रैकेट मैच हुआ, ग्रुप ऑफ 2 मतलब सेकंड राउंड ब्रैकेट जो मैच हुआ है। एंड ग्रुप्स, देन व्हाट ग्रुप्स विल डू, वो आपको टपल रिटर्न करेगा क्या क्या मैच हुआ है। ओके, ग्रुप्स विल रिटर्न अ टपल। सो हियर आई हैव टू जस्ट राइट डाउन ग्रुप्स, इट रिटर्न्स अ टपल कि क्या क्या चीजें मैच हुई। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। सो दिस इज अ मैच फंक्शन, this is a match function. Now another thing is actually search function. So almost match and search are same, but we will just take a difference also. Search also return a match object. जैसे match function अपने को match का object return कर रहा है, search function also return a match object, and the syntax is also same. First of all you have to just write down re, then string, then flag we still didn't discuss actually. So पहले पैटर्न जो अपना रेगुलर एक्सप्रेशन है, सेकंड स्ट्रिंग कि कहां पे सर्च करना चाहते हो। So let me take an example. So guys you can just go with the same example also. Okay, मतलब like ये सेम एग्जांपल में मैं यहाँ पे सर्च कर दूं cats are smarter than dogs, और यहाँ पे हम लोग मैच की जगह सर्च लिख दे, remaining things are same, so it returns the same answer. Okay, so re2.py it returns the same answer. Then what is the difference between search and match? मतलब देखो मैच भी मैच का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, सर्च भी मैच का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तब अपना डेटा कैसे फेच कर रहे हो रिजल्ट से, दैट डिपेंड्स ऑन ए मैच, दैट डिपेंड्स ऑन ए मैच। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन ए मैच क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैच फंक्शन एंड सर्च फंक्शन दोनों सेम काम कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, कोई डाउट? देन व्हाट इज द डिफरेंस मैच और सर्च नाम के फंक्शन के बीच में, डिफरेंस क्या है? देन द डिफरेंस इज मैच फंक्शन स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से सर्च करेगा, मतलब अगर स्टार्टिंग में उसको वो चीज नहीं मिली इट जस्ट इग्नोर। एंड व्हाट अबाउट सर्च फंक्शन, वो लाइक आपके पैराग्राफ के इन बिटवीन से भी कुछ ना कुछ सर्च कर सकता है, जो कहीं से भी सर्चिंग स्टार्ट करेगा। बट व्हाट अबाउट मैच, वो अपने स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में मैच करेगा, अगर वो मैच नहीं मिला देन अगर स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे आपका मैच फाइंड आउट हो रहा है, मैच फंक्शन विल नॉट सर्च दैट। आर यू गेटिंग? मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में मैंने कोई पैटर्न सर्च करने के लिए दिया, या कोई स्ट्रिंग है उसमें मैंने कोई पैटर्न सर्च करने के लिए दिया। सो अगर पैटर्न अपने स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पोजीशन से ही मैच हो रही है, देन मैच फंक्शन कैन वर्क, अदरवाइज मैच फंक्शन विल रिटर्न नन। व्हाट अबाउट सर्च फंक्शन? सर्च फंक्शन कहीं से भी सर्चिंग स्टार्ट कर सकता है, मतलब अगर स्टार्टिंग में उसको नहीं मिल रहा देन इट विल स्टार्ट कंटिन्यू द सर्चिंग। अगर उसको स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में अपना पैटर्न नहीं मिल रहा तो कंटिन्यू रखेगा अपना सर्चिंग, और जहां से पैटर्न मिलना शुरू हुआ वहां से वो सर्चिंग, मतलब वहां से रिजल्ट देना रिटर्न स्टार्ट कर देगा। सो एग्जांपल लेते हैं, सो इट विल बी मोर बेटर। सो हियर वी हैव so here I have cats are smarter than dogs. Okay, cats are smarter than dogs, same example. Okay, and here what is my requirement? मैं dog search करना चाहता हूँ, then I have two options. I can go with match, I can go with search. तो मैंने लिखा re.match and make literal एक fixed string search करना चाहता हूँ dogs. Right now this r is not required here, okay, because right now यहाँ पे कोई special characters नहीं है. So what it returns, but obvious match function returns the match object, search function returns the match object. Okay, ये भी match object ही return करेगा. So दोनों में मैंने सब कुछ same लिखा है. But now this is the data जहाँ पे मुझे search करना था. So dogs are like in a starting position of your string? No, dogs यहाँ starting में नहीं है. Then match function returns none. As we discussed, match function returns none. What about this search function? It returns dogs over here. वो मुझे successfully return करेगा. हाँ, मुझे मेरा data मिल गया. So check करें. So Python re5.py. So
match function just say no match, search function say oh I have a data, मैं सर्च कर पाया. Okay, and अगर मैं dogs यहाँ starting में लिख दूँ तो dogs cats are smarter than dogs, then let's just run. So दोनों ने बोला मुझे डेटा मिलता है. Both the say oh I have a data. So I hope that is clear. So what is the similarity? Search function and match function return the match object. Okay, what is the difference? Match function always starts from the beginning of the string, and search function starts comparing at any position from any position of the string. Okay, so that's that. 1 minute. Yeah. So this is a search function. हम लोगों ने difference देखा. Now what is the difference between group and groups? Groups actually returns the tuple, and group function जो भी आप index value दोगे अगर वो available है then it returns that particular match. जो भी आपका search successful हुआ वो return करेगा. Now search के कुछ और examples लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने /s लिखा हुआ. What is the meaning of /s? /s in the sense that's actually the meaning of /s is actually white spaces. Okay, so like मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है? What it returns? Search मुझे क्या return करके देगा? It returns actually object of match class. अब match class के पास एक start नाम का function है कि पहला match कहाँ पे हुआ था. Okay, पहला match का हुआ था. And what about this /s? /s in the sense it returns actually like white spaces. तो यहाँ पे मैंने मैसेज दिया with the first white space character is located in the position x dot start. तो पहला मैच कहाँ पे हुआ? तो ये मेरा string था the rain in Spain. तो पहला मैच कहाँ पे हुआ? It is on line number, sorry, it's on a position number 3. Okay, 0 से index value start होगी string की. So it's on a position number 3. तो 3 पे मुझे return मिल जाएगा. And guys देखो यहाँ पे search के अंदर मैंने सिर्फ दो चीजें लिखी है. पहला अपना pattern /s and r नहीं लिखा because it's not mandatory. Second is actually text, मतलब जिसमें search करना. Third thing is a flag. Flag we didn't use because it is optional. So इसको check करें कि हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है. केवल, पूजा, सुमित सर, बीरेन सर, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आंसर क्या मिलना है हम लोग को? Yes. यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 3 as expectation. Sorry, as our data it returns 3. It must return 3. So here we have 3. Okay, so that is actually a search. अब ये what is this /s वो बाकी है अपना. But right now just consider /s मतलब white spaces. Okay, /s मतलब white spaces. Now here we have another thing. जैसे यहाँ लिखा था the rain in Spain. Now मुझे AI search करना है. मुझे AI search करना है. AI कहाँ पे? So AI is over here. AI is over here. तो मुझे दो जगह पे AI मिला है. Okay, so let me check. In short, आप search और match दोनों में एक literals भी पास कर सकते हो कि भाई ये डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए, ये पैटर्न मुझे सर्च करके दे. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. Let me just save this one also. re7.py. So what it returns? यहाँ पे x मुझे क्या रिटर्न करके देगा? सॉरी, अगर x को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? It returns है, otherwise it prints the match object because search match का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना. So match object it just print. Okay, अब आपको उसके अंदर से डेटा चाहिए कि कहाँ पे मैच हुआ है, तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं print dot x dot match. तो मुझे वो डेटा देगा कि वो AI ओके मैच नहीं, सॉरी ग्रुप. So it just return oh क्या क्या मैच हुआ था. So what it just tried to find out? AI उसने फाइंड आउट किया. अब कौन सी जगह पे फाइंड आउट किया? So span. So कौन सी जगह पे फाइंड आउट हुआ? 5 and 7. Okay, so 5 in the sense over here. Okay, so 5 to 7 that is your first match. That is your first match. But search क्या करेगा? उसको एक चीज मिल गई, that's it, उसका काम कंप्लीट. बोल मेरा हो गया भाई, मैं आगे काम नहीं कर रहा. Search मतलब it's a linear search or binary search. You can say that any type of search is there, but search मतलब first occurrence पे complete. First occurrence पे complete. Are you getting my point? तो यहाँ पे 5,7 मतलब क्या हुआ? 5 से स्टार्ट हुआ, 7 पे कंप्लीट. तो आप स्पैन पे प्रिंट करा सकते हो. So it just say oh 5,7. 5,7 मतलब 5 से स्टार्ट हुआ, 7 पे कंप्लीट हो गया आपका सर्च. अब मान लो कि AI की जगह मैं कैपिटल AI लिख दूं, ये AI की जगह मैं कैपिटल AI लिखूं, तो राइट नाउ इट्स नॉट अ परफेक्ट मैच. तो अब यहाँ परफेक्ट मैच मिलने वाला है. So it just say 14,16. So 14 से स्टार्ट होके 16 तक. अगर मान लो इसकी जगह मैंने लिखा होता स्पेन,
सो कहाँ पे मैच होता and कितने कैरेक्टर्स मैच होते? 5 कैरेक्टर्स इट विल मैच 12 to 17, 12, 13, 14, 15, 16, 12 to 17. इन द सेंस सर्च क्या करेगा? सर्च पहला मैच मुझे कंप्लीटली देके छोड़ देगा, सर्च से पहला मैच लेगा, ओके, फर्स्ट अकरेंस मैच करेगा. एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक re.i, दैट मींस इग्नोर केसेस, देन राइट नाउ उसने मुझे कैपिटल मैच करके दिया. देखो मैंने उसको बोला था सर स्मॉल मैच है, बट आई जस्ट से ओ लाइक re.i, दैट इज माय फ्लैग, जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द फ्लैग. I just inform regular expression engine, just please ignore that, okay? re.i means just ignore the cases. अगर upper case lower case just ignore, do not worry about that, okay? Characters को match करो ai, so ai अब यहाँ पे match हो रहा है, so it just returns actually like 5,7. and क्या match हुआ? and what is the position? Is it fine? So I hope that is also clear. So now एक चीज का प्रॉब्लम हम लोग को जनरेट हुआ, एंड द प्रॉब्लम इज सर्च कैन ओनली रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंस. जैसे पहली बार में मैच हो गया, इट जस्ट रिटर्न दैट अकरेंस एंड स्टॉप द सर्चिंग. देन व्हाट टू डू? तो अब क्या करें? देन राइट नाउ अगर आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ जहां जहां मैच हुआ सब कुछ चाहिए, देन जस्ट गो विथ फाइंड ऑल. जस्ट यूज अ नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फाइंड ऑल. एंड हियर अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन प्रिंट करना चाहते हो, देन व्हाट वी कैन डू, हम लोग स्पेन फंक्शन यूज कर सकते हैं as we discussed, okay? and what about this one? तो इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, okay? because that is the regular expression, okay? so इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, but x dot span मतलब क्या? it just return actually position, okay? कहां से कहां तक का मैच हुआ है. now another thing is like print the string passed into the string, passed into the function. अगर आप string print करना चाहते हो, this is the data, जैसे कि yeah, here it is. so मैं यहाँ पे लिख देता हूँ string, x dot string. so now let me run this. ठीक है, 1 minute. yeah, राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएंगे. so जो भी आपने डेटा पास किया था, भाई मुझे ये सर्च इसके अंदर सर्च करना है, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा जिसके अंदर मुझे सर्च करना है. if you want to get that, then x dot string. so these are the attributes जिससे आप इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप क्या सर्च कर रहे हो, किसके अंदर सर्च कर रहे हो, एंड कौन सी पोजीशन पे मिला है, एंड समथिंग लाइक. so that's not a big deal, okay? now group we already discussed. हम लोग सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं. ग्रुप we already discussed. ग्रुप मतलब जो मैच हुआ है, okay? जो मैच हुआ है, like here I just print the group. 1 minute. so here I just print the group. तो क्या मैच हुआ है? तो ai मैच होगा कहाँ पे? so like over here. तो अगर आपको पोजीशन चाहिए, then span group, it actually returns an occur, like it just returns what it actually matched, okay? उसको क्या चीज मिली है. so अगर इसकी जगह मैं ऐसा कुछ फंक्शन लिखूं तो like अगर मैं यहाँ पे सर्च की जगह मैच फंक्शन यूज करूँ तो सेम आंसर इज दैट, नो चेंज, ओके? बिकॉज मैच एंड सर्च दोनों मैच क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाले, सो डू नॉट वरी, ओके? ग्रुप इज नॉट देयर. ठीक है, 1 मिनट. must return group. dot re dot match. okay fine. यहाँ पे ग्रुप क्यों नहीं मिला गाइस? यहाँ पे ग्रुप क्यों नहीं मिला? कैन यू प्लीज टेल मी? ग्रुप फंक्शन अवेलेबल है, बट ग्रुप मिला क्यों नहीं? बिकॉज हमने मैच फंक्शन यूज किया ना. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द मैच फंक्शन? मैच फंक्शन स्टार्टिंग से सर्च करेगा, तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है? इट इज द, और हम सर्च क्या कर रहे हैं? ai. तो ai नहीं मिला तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? इट रिटर्न्स नन. जस्ट चेक, इट रिटर्न्स नन. उसने मुझे नन रिटर्न कर दिया था. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ ai लिख देते हैं. so here we have like match function returns the ai, okay? match function returns the ai. Here ai is there, 0 to 2. so remaining things are same, the remaining things are same, okay? but what is the difference between search and match? अब ये clear है हम लोग को, ठीक है? fine. so now the next thing is split all. so match versus search. so Python offers different primitive operations based on regular expression. Match checks for a match on at the beginning of the string. Search checks the match from anywhere in the string. That's that. so ये example अभी थोड़ी देर पहले मिल गया था. now replace थोड़ी देर के बाद देखते हैं, उससे पहले find all ले लेते हैं. so find all का काम का search जैसा ही है, but iterative way में. जितने भी मैच हो रहे, return all this.
जितने भी मैच हो रहे सबके सब रिटर्न कर दिए, दैट्स दैट। सो व्हाट वी विल डू, ये सेम प्रोग्राम को हम लोग सेव एज करके, सर्च की जगह लिख देंगे फाइंड ऑल, सर्च की जगह लिख देंगे फाइंड ऑल, सेम थिंग इज देयर, ओके। बट नाउ व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फाइंड ऑल, फर्स्टली वी हैव टू जस्ट चेक व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फाइंड ऑल। सो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं, लाइक वो हम लोग को सेम मैच का ऑब्जेक्ट दे रहा है, व्हाट इज द रिटर्न। सो लेट मी चेक कि मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है। सो इट रिटर्न्स, oh what it returns, it directly return the list, it directly returns the list, do not like आपको उसके बाद कोई functions call नहीं कर, because match और span वगैरह we cannot do anything, वो जितना जितना match होगा वो return करता जाएगा, okay। जहां जहां पे match हुआ it returns all these things actually। so like right now we cannot call all these functions because list के पास ये functions है। so now मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं अभी like re.i जो हमने डिस्कस किया इग्नोर केस के लिए। so here I have ai, one is in capital, one is with the capital A and second one with the exact match। so now let me run, it returns both this thing, okay। so what about find all, जितने भी occurrence है वो आपको रिटर्न करेगा, but not the position, आपको पोजीशन वगैरह नहीं मिलेगी कहाँ पे मैच हुआ है, but it returns कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे है, ओके। सो जो पीएनआर वाला पैटर्न मैंने आपको बताया था, मेरे पास एक पैराग्राफ है और पीएनआर से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग चाहिए मुझे, व्हाट आई कैन डू, अदरवाइज मुझे पीएनआर कितने टाइम में आई वांट ऑल द पीएनआर्स विद इग्नोर केसेस, देन आई कैन जस्ट राइट डाउन फाइंड ऑल पीएनआर एंड व्हाटएवर द पैराग्राफ इज देयर re.i, सो इट रिटर्न्स द होल थिंग, ओके। सो लास्टली जैसे अब थोड़ी पैटर्न्स हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की डिस्कस कर ले, उसके बाद हम लोग ऐसा भी देखेंगे कि पीएनआर के बाद डिजिट्स कहाँ पे कितने हैं, अदरवाइज पीएनआर के बाद कुछ स्पेशल पैटर्न हम कैसे सर्च करें, अदरवाइज पीएनआर से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग चाहिए, अदरवाइज मेरे पास एक बड़ा सा लाइक फाइल है, I have a file with actually like 100 strings or 100 like lines and something like that, उसमें मुझे जितने ईमेल आईडीज है मुझे सब चाहिए, अदरवाइज यूजर के नाम एंड उसके एज चाहिए, ओके। लाइक यूजर के नाम और उसके एज चाहिए, तो मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे स्क्रैप करना है उसमें से डेटा, so that you can just go with actually like regular expressions, okay, re mode। so find all that is useful, जो आपको सब कुछ सर्च करके रिटर्न करेगा, that's that। so same example is there, ai in spin, so यहाँ मुझे सिर्फ ये ai मिलेगा because हमने रिटर्न में सॉरी अपने इग्नोर केस नहीं लिखा। what about this one, it returns none, मतलब empty list it returns because Portugal इसमें available नहीं है, so it returns actually a empty string। So that's that। Now another thing is actually split function, find all, I hope that is clear। So हमने पहला function देखा match, second one is search, third one is find all, next one is split। So split पे जहां पे कैरेक्टर मैच हुआ आप उसको बोलो यहाँ से मुझे split करना है, तो पूरी string को उस पोजीशन से डिवाइड करना शुरू कर देगा, and it returns a list of results, it returns a list of results। let I say मेरे पास एक string था like cats are smarter than dogs, मुझे यहाँ पे हर एक वर्ड को split करना है, तो मैं स्प्लिट को बोलूंगा सर जहां जहां स्पेस आ रही है that is your actually splitting point। so it returns the whole, like it returns a group of words, cats are smarter than dogs, वो सबके वर्ड्स मुझे रिटर्न करके देगा। so let me check, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है like text the rain is spin, what about this /s, that means white spaces, and I just write down split, ओके तो जितने भी वर्ड्स है मुझे रिटर्न हो जाएंगे। सो लेट मी रन दिस वन। सो हियर वी हैव द रेन इन स्पेन, द रेन इन स्पेन, द रेन इन स्पेन, मतलब हर एक को एज ए लिस्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू पोजीशन पे सेट करके दिया। सो दैट इज समथिंग अबाउट द स्प्लिट, ओके। नाउ लाइक हियर इट इज लाइक यहाँ वन लिखने का मतलब लाइक मुझे उसको बोलना था ओके भाई मुझे एक या दो कैरेक्टर्स ही चाहिए, जैसे मैं कोमा करके 2 लिख देता हूँ, ओके। मैक्सिमम दिस मच ऑफ स्प्लिट्स आई रिक्वायर, मैक्सिमम दिस मच ऑफ स्प्लिट्स आई रिक्वायर। सो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इट रिटर्न्स ओनली 3, मतलब 0 1 2 3, लाइक द रेन इन स्पेन, द रेन इन स्पेन, मतलब स्पेस कितने चाहिए, लाइक दैट, कितने स्पेस को उसको स्प्लिट करना था। देखो ये पहला स्पेस, ओके, वहां से स्प्लिट हुआ, ये सेकंड स्पेस वहां से स्प्लिट हुआ, मतलब 2 बार स्प्लिट करना है। तो 2 बार स्प्लिट करो मतलब आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे, मतलब 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा, ओके। सो दैट इज मैक्सिमम अकरेंस, आपको मैक्सिमम कितने टाइम लूप चलाना है,
सो फर्स्ट टाइम पे स्प्लिट करोगे तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सेकंड टाइम लूप चलाओगे तो सेकंड पार्ट एंड थर्ड टाइम मिलेगा। अब कोई ऐसा बोले नहीं सर मुझे 20 स्प्लिट्स चाहिए, सो लेट मी जस्ट डू, आप आउट ऑफ रेंज जाओगे तो क्या होगा, इट जस्ट इग्नोर, मैक्सिमम जितने स्प्लिट है उतना हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ लूप कहां तक चलने वाला है, आइदर द एंड ऑफ द स्ट्रिंग अदरवाइज अप टू द मैक्सिमम अकाउंट्स, जो भी आपने वैल्यू प्रोवाइड की है। ओके, सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। सो दिस इज द स्प्लिट फंक्शन। 4 फंक्शन कंप्लीट हुए, ग्रुप, सर्च, सॉरी नॉट द ग्रुप, पहला कौन सा था, मैच, देन सर्च, देन फाइंड ऑल, देन नेक्स्ट वन इज split. Next one is guys replace. The function name is actually sub, okay, substitute, but it is for replacement actually. Okay, so let me just go with that. So the next one is actually replacement. Function name is actually sub. Almost the same syntax is there. पहली चीज आएगी रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब पैटर्न। नाउ आप रिप्लेस क्या करना चाहते हो, रिप्लेस क्या करना चाहते हो, रिमेनिंग टू थिंग्स आई होप आपको पता है, स्ट्रिंग एंड मैक्सिमम अकरेंस। ओके, स्ट्रिंग एंड मैक्सिमम अकरेंस। सो नाउ लेट मी जस्ट गो विद दिस एग्जांपल। सो राइट नाउ आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है, बिकॉज इसमें आरी काफी अच्छा खासा यूज हुआ है। सो दिस इज माय स्ट्रिंग विद पाइथन कमेंट, दिस इज फोन नंबर, पूरा स्ट्रिंग है। ओके, सो मुझे क्या करना था, हैश के बाद की जितनी चीज है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है। हैश के बाद जितना भी है, हैश के बाद जितना भी है, तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, आर फर्स्ट अकरेंस मस्ट बी हैश, मतलब हैश होना चाहिए, हैश स्टार्टिंग में होना चाहिए। उसके बाद लिखा डॉट स्टार, डॉट स्टार मतलब एनीथिंग एंड नंबर ऑफ टाइम्स, एनीथिंग एंड नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट अबाउट दिस डॉलर, डॉलर मतलब वो अपनी स्ट्रिंग का एंड होना चाहिए। डॉलर का मतलब होता है स्ट्रिंग का एंड होना। ओके, मतलब ये जो चीज में, ये जो पैटर्न में सर्च करूं, ये जो पैटर्न में सर्च करूं वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग में ही मैच होगी। मतलब इसके पीछे अगर कुछ और लिखा है या एंटर करके आप और कुछ लिख रहे हो, देन इट्स नॉट वैलिड, देन इट इज नॉट वैलिड, दिस मस्ट बी इन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अदरवाइज यहाँ हैज करके और भी कोई चीज अवेलेबल है, लाइक हैज, like hello world, then it will match with the hello world only, it will match with the has hello world only. Okay, end of the string के साथ ही मैच होगा, fine, end of the string के साथ ही मैच होगा। डॉलर मतलब end of the string, that we will discuss later on. What about this dollar, what about this has मतलब that is the starting position, dot star का मतलब n number of things. Okay, तो इस पूरी स्ट्रिंग में से, ये पूरी स्ट्रिंग में से मुझे एक्चुअली डॉलर के बाद की चीज नहीं चाहिए, मतलब कमेंट रिमूव करना। तो whenever you will print this number, तो only this part it will display. Okay, only this part it will display. तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, this is my actually pattern, उसको empty string से रिप्लेस करना है, और कौन सी स्ट्रिंग में हम लोग को एक्चुअल वर्क करना था, this is my actual string, that's that. Now यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है स्लैश डी, स्लैश डी का मतलब, स्लैश कैपिटल डी का मतलब नॉन डिजिट, तो नॉन डिजिट कुछ भी मिले उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग ही पास कर रहा था, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, इट विल रिप्लेस ऑल दिस थिंग्स विद द एम्प्टी, और जहां जहां हाइफन दिया हुआ उसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। तो इन शॉर्ट ये सब तो अभी भूलिए। ओके, हम लोग को समझना है एसयूबी, एसयूबी मतलब दैट इज सब्स्टिट्यूट। सो लेट मी रन दिस। सो पहले वाले में कमेंट रिमूव हुए, सेकंड वाले में प्योर फोन नंबर मिला। सो इज इट फाइन? नाउ एसयूबी के एक आधा एग्जांपल और होगा, या फाइन हियर इट इज। सो यहाँ पे स्लैश का मतलब क्या हुआ, स्लैश एस का मतलब दैट इज व्हाइट स्पेसेस, तो व्हाइट स्पेसेस को एक्चुअली मुझे 9 से रिप्लेस करना था। सो लेट मी जस्ट गो विद दिस वन आल्सो। तो जहां जहां स्पेस अवेलेबल है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 9। सो हियर इट इज फाइन। सो एसयूबी में सिंपल लिखना था, दिस इज एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन 9 की रिप्लेसमेंट किससे होगा, एंड फाइनली यू हैव योर स्ट्रिंग। मैक्सिमम अकरेंस आल्सो यू कैन जस्टिफाई। ओके, मैक्सिमम अकरेंस भी आप लिख सकते हो। नाउ हियर दिस वन इज द नेक्स्ट, यहाँ पे मैक्सिमम अकरेंस दिया हुआ है। सो लेट मी जस्ट गो विद दिस वन आल्सो। ये भी एक यहीं पे एग्जांपल, इसमें चेंजेस करके देख लेते हैं। सो हम लोग मैक्सिमम अकरेंस 2 दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट 0 मतलब जितना है उतना कर दो। अब देखो यहाँ पे स्पेस एज इट इज रहा, ओके, यहाँ पे स्पेस एज इट इज रहा, तो मैक्सिमम ये जो 2 अकरेंस थे वहां पे उन्होंने 9 रख दिया। द स्पेस, लाइक द 9 इन स्पीच,